In the previous lecture, I have already explained the indexing formula of row major order for n-dimensional array. So you can see that lecture in the previous video. Now in this lecture, I will explain the indexing formula for column major order for n-dimensional array. So what was the n-dimensional array? So it is a collection of data elements in continuous memory location, and the dimension is L1 by L2 by L3 to Ln, and we can access any element with the help of a set of index that is also called the subscripts, that is I1, I2 to In. So we can access any value from this matrix, this array. Now the lower bound, uh, what is the length of dimension? The length of dimension varies from lower bound to upper bound, and we can calculate by this formula. Lower length of dimension is equal to upper bound minus lower bound plus 1 of that one. And what is the effective index? Effective index is the number of indices before I of k. You can write that effective index is equal to actual index minus the lower bound of that dimension. Now, as we know, n-dimensional array is also stored in computer's memory by two ways. The first way is a row major order. Now, in row major order, the elements are listed in such a way that the last subscripts varies very rapidly, very fast, and the next to last subscript varies lessly. Okay, like this. So last, the rate of change in this index number is very fast, and the rate of change in this number is very slow in this index number. Now in column major order, so elements are arranged in such a way that the first subscript varies very quickly, and the second subscript varies less, and so on. So you can write here the first index rate of change in this value is very fast, and the rate of change in the last value is very slow. So let us understand what is column major order. So let us assume we have a matrix. We have three matrices of 2 by 4. Okay, there are 2 rows and columns, 2 rows and 4 columns. Now in column major order, the first dimension, as we know, the change very fast, and the last dimensions change is very slow. So let us assume we have first matrix. Okay, so last index represent the matrix number, and first two represent the row number and column number respectively. Now second matrix. Okay, now this is the third matrix. Now there are 24 elements, but computers की memory में ये sequence में ही जाएंगे. So there are 24 cells. Now index किस तरीके से vary कर रहा है यहाँ पर? So you can see here 1 2 1 1 के लिए 1 2 next index के लिए 1 2 next index के लिए, okay, and 1 2 4th index के लिए. So you can see here काफी rate of change in the first index number is very fast, and the rate of change in the second index number is less. और last वाले में देखेंगे आप, so इसमें भी change हुआ भी नहीं है. Now ठीक है, now the last, इसमें कितने वैल्यूज हम डाल सकते हैं? 1 हमने डाल दिया, आप नेक्स्ट वैल्यू 2 ले सकते हैं, एक 3 भी ले सकते हैं. सो 2 वैल्यू के लिए आप 1 2 1 2 1 2 और 4 4 के लिए भी 1 2. सो दिस वन. सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे बहुत स्लो चेंज है, यहाँ पे बहुत फास्ट चेंज है. नाउ द लास्ट वन इज 3. अगर हम लास्ट वैल्यू 3 से लेते हैं, सो स्टार्ट फ्रॉम 1 1. ओके, सो दिस वन एंड दिस इज टू 1 2. नेक्स्ट वन 1 2 1 2 3 के लिए, और 4 के लिए 1 2. ओके, सो यू कैन सी हियर लास्ट वाले में रेट ऑफ चेंज इज वेरी लेस, बीच वाले में उससे ज़्यादा है, और फर्स्ट वाले में बहुत क्विकली हो रहा है, राइट? सो यू कैन coordinate from here to 2D. So 1 1 1 is there here, 2 1 1 is here. Okay, so this is the column 1. Next element 1 2 1, this is 2 2 1, 1 2 1, and this is 2 2 1 first. So second column, and next one is 1 3 1 and 2 3 1. So this is 1 3 1 and this is 2 3 1. Okay, 2 3 1 is here. आगे जाएंगे तो 1 4 and 2 4 1, 1 4 1 and 2 4 1.
Okay, so matrix number 1 is over. Come to matrix number 2. Matrix number 2 अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 1 2 and 2 1 2, 1 1 2 and 2 1 2. तो फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, सेकेंड कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। इस तरीके से ये जो डेटा यहाँ पे स्टोर है, जो डेटा यहाँ पर मैट्रिक्स में स्टोर है, वो सीक्वेंस में यहाँ पे स्टोर हो रहा है, लाइक दिस। नाउ कम टू थर्ड मैट्रिक्स। तो थर्ड मैट्रिक्स पे अगर हम पहुंचते हैं तो 1 1 3 and 2 1 3, 1 1 3 and 2 1 3. After that 1 2 3 and 2 2 3. So 1 2 3 and 2 2 3, this one. Okay, next, and the last column is this one. So sequence में इस order में हमारे elements store होंगे. Now I want to calculate the indexing formula for in column major order of 3D array. Let us assume the same array size is 2 by 4 and the total number of matrix is 3 and the dimensions is 2. First dimension, second dimension 4, third dimension is L of 3 is equal to 3. Okay, and the total number of elements is 24, like this. तो कॉलम मेजर ऑर्डर में जैसे मैंने अभी बताया था उसी हिसाब से हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग की हुई है कॉलम वाइज. नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द इंडेक्सिंग फार्मूला ऑफ subscripts 2 comma 3 comma 3. Where is 2 3 3? So 2 3 3 is here, this one. So I want to calculate the address number of this one. So before this point, how many total number of cells, उसकी कैलकुलेशन हमें करना है, टोटली मैथमेटिक्स यहाँ पे अप्लाई करना है. सो इट इज इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर दिस कोऑर्डिनेट, दैट इज 2 3 3 से ऊपर कितने एलिमेंट्स हैं, एंड मल्टीप्लाई विद द साइज ऑफ सेल. सो ठीक है, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा फोकस करते हैं कि आपका जो सबस्क्रिप्ट्स, जो लास्ट का सबस्क्रिप्ट्स जो है दैट इज 3. तो ये 3 जो है इसमें वेरिएशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस पॉइंट से. इससे पहले आप देखेंगे तो ये 2 था, ओके, यहाँ पे 2 था, और उसके पीछे जाएंगे तो दैट इज 1. सो इफ आई वांट टू फाइंड द लास्ट सबस्क्रिप्ट के एरे में फर्स्ट पहली पोजीशन पे किस जगह पे आया है, अगर हम देखेंगे 17 का जो सेट ऑफ इंडेक्स है तो उसका लास्ट वैल्यू जो है वो 3 आया है, राइट. तो 3 आने के लिए उससे पहले वो 2 था, उससे पहले 1 था. तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपकी डायमेंशंस है उसके सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, दैट इज 2 3. इफ आई वांट टू कैलकुलेट द लास्ट वन, उसका मुझे सबस्क्रिप्ट्स फाइंड आउट करना है. तो 2 रोज एंड 4 कॉलम्स, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 8. सो देखिए 8 तो आपके यहीं पर हो जाते हैं और यहाँ पे सारी कॉम्बिनेशन आ जाएंगे. अगर हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 रखते हैं और यहाँ पे 1 रखते हैं तो दिस इज 1 1, दिस इज 2 1, ओके. उसके बाद 2 के साथ में हमने देखा 1 2 रख के, फिर 3 के साथ में हमने 1 2 को कर दिया, फिर 4 के साथ. सो कॉम्बिनेशन इज ओवर. सो इट मीन्स पहला हाइपर प्लेन हमारा ओवर हो चुका. नाउ द नेक्स्ट, अब आपने 2 के साथ में फिर यही सेट किया, 1 1 के साथ में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पे लगाया, 2 2 के साथ में, 3 3 के साथ में, 4 4 के साथ में. So total number of 2D matrix is how many total number of complete 2D matrix before this point? Okay, 2 by 4 की size की. So we can write here the effective index is 2 minus 1, this is 3 minus 1, and this is 3 minus 1. Why minus 1? Because the first element have lower bound is 1 1 1 in all case. Okay, so सी के केस में ये 0 होता, बट ये यहाँ पे लिखा है ये 1 1 1. सो आई माइनस करेंगे 1 को, ओके. सो एक्चुअल इंडेक्स नंबर इज दिस वन 2 3 3, बट इफेक्टिव इंडेक्स नंबर इज 1 2 2. एक एक कम हो गया. दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 2. नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ दिस वन. सो आपको पास करने पड़ेंगे 2 by 4 के मैट्रिक्स, ओके, 2 by 4 के मैट्रिक्स, बट हाउ मेनी टाइम्स, दैट इज ए E3. ओके, लास्ट का इंडेक्स नंबर अगर हमें कैलकुलेट करना है कि कहाँ पे पहली बार आता है, सो 2 टाइम्स. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E3? दैट इज ए 2 टाइम्स. सो 2 by 4 के मैट्रिक्स आपको 2 टाइम्स अप्लाई करने पड़ेंगे यहाँ पर. सो यू कैन फाइंड दैट वन. या यू कैन सी हियर, यहाँ पे
मैंने इस एरिया को रेक्टेंगल में दिखाया है. सो इस यू आर हेयर, अगर आप ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, सो आप पहला सबस्क्रिप्ट ड्राइव करते हैं, दैट इज 3. ओके, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 दैट इज 16. तो आप देखेंगे ये 16 तक आप आ चुके हैं, यानी कि आप एड्रेस किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, 17 वाले का, क्योंकि ये एड्रेस जो सेल का जो एड्रेस आएगा वो इसके बाद वाले का आएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. अब हमें आगे कितना पढ़ना है, ये 3 आपका आ चुका है और आखिर तक रहेगा ये 3, राइट, जहाँ तक हमें कैलकुलेशन के लिए डिजायर्ड है. सो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3 सब जगह पर है. नाउ द सेकेंड लास्ट सबस्क्रिप्ट को अगर हमें ड्राइव करना है, दैट इज ए I2, तो हम E2 की हेल्प से देखेंगे. सो E2 से पहले आपके टोटल नंबर ऑफ 2D मैट्रिक्स कितने आते हैं. सो दिस इज फॉर I2. ओके, तो इससे पहले आपके मैट्रिक्स 1 डायमेंशनल हैं जिनका साइज जो है दैट इज 2. So 1D matrix, how many times of 1D matrix? It is depend upon the value of E2, यानी E2 times of 1D matrix. And what is the value of E2? That is 2. तो आप यहाँ पे देखेंगे इस जगह पर भी, here focus here. So yeah, 1 2 पहला मैट्रिक्स, 1D सेकेंड मैट्रिक्स, तो 2 टाइम्स कंप्लीट हो गया. हाउ मेनी कंप्लीट 2D 1D मैट्रिक्स? 2 टाइम्स. ओके, सो दैट इज 4. तो नेक्स्ट आपका जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपकी कैलकुलेशन जो हुई है वो कहाँ तक आ गई, इस ब्लू रेक्टेंगल तक. ओके, सो 16 का कैलकुलेशन आपका यहाँ पर आया और 4 का कैलकुलेशन आपका 2 to the 4 आप देखेंगे 1 2 3 एंड देन 4 यहाँ पर आ गया. सो आपने कौन कौन से सब्सक्रिप्ट ड्राइव कर लिए? लास्ट सब्सक्रिप्ट तो ऑलरेडी ड्राइव था, अभी सेकेंड लास्ट ड्राइव किया है. सो 3 मैच हो गए डिजायर्ड लोकेशन से, डिजायर्ड वैल्यू से. नाउ कम टू दिस वन. तो लास्ट वन आई वांट टू इवेल्युएट, हमें लास्ट सब्सक्रिप्ट तक पहुंचना है, लास्ट एक्चुअल इंडेक्स तक पहुंचना है. सो दैट इज प्लस E1, क्योंकि अगर हम इस पे कैलकुलेशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई आपका मैट्रिक्स है ही नहीं. सो सिंपल आपको लिखना है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर दैट पॉइंट, बिफोर दैट एक्चुअल इंडेक्स नंबर, दैट इज इक्वल टू एक्चुअल इंडेक्स नंबर माइनस द लोअर बाउंड ऑफ दैट वन, दैट इज ए 2 - 1, दैट इज 1. सो अब देख भी रहे होंगे यहाँ पे 1 ही एलिमेंट है. यू कैन सी हियर दैट इज ए 16 4 एंड 1. सो ग्रीन कलर में देखिए दिस इज ओनली 1. तो 16 + 4 + 1 दैट इज 21. यहाँ पे आप देखेंगे 16 + 4 + 1, so 21 cells before that point. So 21 multiplied by the size of cell plus the offset, that is the base address, you can find the address of this one. तो यहाँ पे आपके सब्सक्रिप्ट्स ऑलरेडी ड्राइव कर चुके थे, लास्ट एंड सेकेंड लास्ट, और फर्स्ट सब्सक्रिप्ट अभी अभी आपने ड्राइव किया. सो यू गॉट द एग्जैक्ट पोजीशन जो आपकी डिजायर्ड थी, जो आपकी क्वेश्चन में आपने बोला था. सो यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे एन डायमेंशनल एरे को ड्राइव करने के लिए. सो लेट अस assume my n dimensional array is A of L1, L2, L3, there are n dimensions, and I want to calculate the location of this one. So this is the set of index subscripts I1 to In. So effective index is the actual index minus the lower bound of that one. And for calculating the location of I1, I2, I3 to In in a column measure order, it is necessary to pass through En complete matrix of size L1 by L2 by Ln minus 1. So आपको लास्ट इंडेक्स नंबर अगर कैलकुलेट करना है, लास्ट सब्सक्रिप्ट कैलकुलेट करना है, In पे जाना है. So effective index, that is E1, okay, multiply by the before that point. इस पॉइंट से पहले आपके कितने पॉसिबिलिटीज बनते थे, तो वो पॉसिबिलिटीज कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स लगा करके L1 से Ln-1, इससे एक पहले तक की हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे एक्चुअल डायमेंशन की. So that is the n-1d matrix. So how many complete n-1d matrix?
सो दैट इज E1. सो E1 मल्टीप्लाई बाई दैट वन, तो हम लास्ट सबस्क्रिप्ट को जनरेट कर पाएंगे जो कि एरे में पहली बार आएगा सीक्वेंस में अगर हम चलते हैं. ओके, नाउ we can reach to this subscript. Okay, now प्रोसेस को अगर हमें अब सेकेंड सबस्क्रिप्ट को अगर हमें ड्राइव करना है, so it is necessary to pass the additional en-1 groups of size this one, L1 multiply by L2 multiply by Ln-2. यानी सेकेंड इसके पहले वाले सबस्क्रिप्ट को ड्राइव करना है, तो उसके प्रीवियस आपके जो एलिमेंट्स हैं उनमें अगर आप I1 I2 की सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो कितना होगा उनका नंबर, दैट विल बी L1 मल्टीप्लाई बाई L2 मल्टीप्लाई बाई Ln-2, क्योंकि आप सेकेंड लास्ट को कैलकुलेट करना है तो Ln-2 आएगा यहाँ पर, राइट. सो n-2d मैट्रिक्स जो हैं वो कंप्लीट हैं हाउ मेनी टाइम्स, En-1 टाइम्स. अगर हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं प्रीवियस टर्म में, तो आप जो सीक्वेंशियल ऑर्डर में नीचे जा रहे हैं एरे के, तो सेकेंड सबस्क्रिप्ट आप जनरेट कर पाएंगे, वहां तक आप पहुंच पाएंगे. सो we can reach the first element A whose the last two subscripts are match. पहले एक तो पहले से ही मैच कर रखा था, सेकेंड और आपका मैच हो गया. एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू जब तक कि आप धीरे धीरे डिक्रीज होते हुए I(2) तक नहीं आते. ओके, नाउ एंड द लास्ट वन, जो लास्ट का जो बचेगा उसमें इफेक्टिव इंडेक्स को हम सीधे सीधे ऐड कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बिफोर I1 it will be equal to I1 minus lower bound of that one, that is effective index of this one, E1. So it is necessary to pass E1 additional element to reach the desired one, तो आप desired location पे पहुंचेंगे. So the location of this one can be written as like this one. जो हमने यहाँ पे बोला था वो mathematically लिखना इतना आसान है यहाँ पर. So n-1d मैट्रिक्स, कंप्लीट मैट्रिक्स जिनका साइज L1 मल्टीप्लाई बाई L2 मल्टीप्लाई बाई Ln-1 है, हाउ मेनी टाइम्स Ln-1, हाउ मेनी टाइम्स En टाइम्स. ओके, तो आप लास्ट सबस्क्रिप्ट को जनरेट कर पाएंगे सीक्वेंस में. ओके, सेकेंड लास्ट टू सबस्क्रिप्ट अगर जनरेट करना है तो उसमें ऐड करना पड़ेगा आपको द ग्रुप ऑफ साइज L1 मल्टीप्लाई बाई L2 to Ln-1, हाउ मेनी टाइम्स, दैट इज En-1 टाइम्स. प्रोसेस विल कंटिन्यू इन द सेम मैनर. आपका n-3 डायमेंशनल का जो मैट्रिक्स है वो कंप्लीट मैट्रिक्स कितना है, टोटल मैट्रिक्स है n-2, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये सबको जब हम ऐड करेंगे कंटिन्यूएशन में, आप तो अपने डिजायर्ड लोकेशन तक पहुंचेंगे. दैट लोकेशन इज दिस वन. सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सेल्स बिफोर दिस पॉइंट. ओके, जो राउंड ब्रैकेट के अंदर है. So, but there are many multiplication operator, there are many plus operator. We can simplify with the help of taking common. Okay, यहाँ पे L2 से लेकर L1, L2 से लेकर के Ln-1 तक अगर हम कॉमन निकालते हैं Ln-2 तक, तो आपका बचेगा E of n मल्टीप्लाई बाई लास्ट का टर्म Ln-1 और यहाँ पे प्लस En-1. आगे फिर इसको यहाँ पे दो टर्म्स में से कॉमन निकालते हैं. सो दिस वन, L1 से लेकर के Ln-3 तक आपने कॉमन निकाली है इन दोनों टर्म्स में, दिस वन एंड दिस वन. प्रोसेस को आगे बढ़ाया. ठीक है, सो एट लास्ट वी गॉट द फार्मूला लाइक दिस, एंड दिस इज a column measure order indexing formula, and we can write in this way also. Okay, आप यहाँ पे देख सकते हैं. Now this equation number 1 and the last one is the same thing. अगर i का वैल्यू आप 1 पुट करते हैं, so j is equal to 1 से लेकर के आप कहाँ पे जाएगा, i is equal to अगर 1 पुट करते हैं that is 0, तो ये चलेगा ही नहीं आपका. ओके, बट i का वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हैं या 3 पुट करते हैं तो लास्ट से कैलकुलेट. i का वैल्यू n अगर पुट करेंगे तो j आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से लेकर के n-1 तक. तो यू कैन राइट हियर दिस मल्टीप्लीकेशन हाउ मेनी टाइम्स, n-1 टाइम. So j is equal to 1, j is equal to 2, j is equal to 3. So L1 multiply by L2 multiply by Ln-1. And what is the value of I? That was n. So this is E of n. So this terms. Okay. ये सबसे लास्ट में आएगा. ये टर्म्स आपका सबसे पहले आ जाएगा. ओके, अगर i का वैल्यू 1 पुट किया था आपने तो ये टर्म जनरेट ही नहीं होगा. दिस इज ओनली E of 1. So this one. i का वैल्यू 2 पुट करेंगे. So this is 2 minus 1. So this is
L1, so L1 multiply by this is E2, so this turns, okay. तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूले की हेल्प से भी इसको जनरेट कर सकते हैं. So this is the column measure approach. In the next video, I will explain the shortcut method कि हम किस तरीके से इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लिख करके कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.